that. Recently, the American minister visited India to discuss Afghan problems or issues. So if you can shed us some light on what that discussion was about. Yeah, this was the first ever visit from a Trump administration or cabinet, you can say. Okay. And therefore it was considered to be very, very important to see what would be the outcome. Right. And especially people were looking at some kind of, with the new angle because of the Trump policies, very drastic changes and things like that. Right. So what happened that he visited India and he asked Indians to send their military for the assistance in Afghanistan, which they said no. So that was kind of first big no for the Trump administration in this kind of situation. Right. इसका जो consequences हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं कि ये कोई it's not a war like situation where India said no, we are not going to participate and things like that. लेकिन ये जो है ना, इसका मुझे बड़ा खतरा था कि Indian would be getting too much excited about an invitation like this, and maybe they would be looking at it as an opportunity to get more share and more involvement in Afghan issue. And in that excitement they may have, some kind of mood or decision to do so. तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये जो है ना, I look at it as a trap. Afghanistan is a big trap. वो जो चूहे पकड़ने का ट्रैप होता है ना, हम लगाते हैं, तो उसमें जो चूहा आता है, no matter how big that is, it would be trapped there. Right. क्योंकि it's a trap. Yeah. It's nothing else. तो उसमें ये है कि अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिक्स है, उसमें ये है जी कि पाकिस्तान चूंकि मिलिटरीली इन्वॉल्व रहा है फ्रॉम डे वन. Right. Specifically, I would say even from the creation of Pakistan in many ways and in many shapes, Pakistan जो है involved रहा है अफगानिस्तान के साथ militarily. Sometime in hostile situation, sometime in friendly situation. तो उसमें अब वो totally उसको बाहर निकाल दिया गया, is out. Okay. And is sitting at the fence and watching what's going on. तो उसमें इंडियंस के लिए फिर ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि दे आर बीइंग इनवाइटेड. ठीक जी. लेकिन उसमें मसला ये है कि टू बी इनवाइटेड टू डू व्हाट. उसमें देखना तो ये होता है ना कि क्या दे आर इनवाइटिंग यू टू क्लीन द मेस और दे आर इनवाइटिंग यू टू क्रिएट अनदर मेस एंड देन डील विद इट फॉर नेक्स्ट 10 or 15 years. Right. तो ये इस तरह की एक सिचुएशन थी, और मैं ये समझता हूं कि यही फायदा होता है डेमोक्रेसीज का. देखें, सेम सिचुएशन जब हुई थी ना पाकिस्तान के साथ, एंड देयर वाज जस्ट वन कॉल फ्रॉम वाशिंगटन टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ, द गाय इन यूनिफॉर्म, एंड ही गॉट सो एक्साइटेड दैट ही सेड यस, एवरीथिंग इज यस, एंड सो बिग यस के जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले थे जिन्होंने ये कॉल की थी, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. दे रोट इन देयर बुक्स लेटर ऑन दैट वी वर सरप्राइज्ड दैट मुशर्रफ वाज विलिंग टू गिव मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गाय. Right. So that is the difference between a person sitting in a uniform and a person sitting with a long political struggle and experience. Right. Having their feet on ground with the people and to understand how we should do the decisions about our people. Right. तो ये बैलेंस तो रहता है डेमोक्रेसीज वर्सेस वन पर्सन जो, या टोटलिटेरियनिज्म जो होता है उसमें, और डेमोक्रेसीज में ये फर्क बनता है. तो इसलिए इन्होंने उसको फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि यस फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, services, training, welfare, whatever we can contribute in Afghanistan to rebuild, और इसका जो है, लेकिन ये है कि no further military involvement, Okay. especially in the battle situation, or to be on the ground for fighting. Right. वैसे तो ऑलरेडी इंडिया इन्वॉल्व है वहाँ पे ट्रेनिंग में, जो अफगान सोल्जर्स को या इस तरह की जो बेसिक मिलिट्री सिचुएशन है उसके अंदर. जी. तो मैं ये समझता हूँ कि इट वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग फॉर दिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिकॉज आई डोंट थिंक दे वर सो नाइव to expect that India would say yes. Right.
So it was kind of expected decision. And at the same time it was for the Indian public और लोगों के लिए भी जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था. Right. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तान के लिए दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम. Right. और इसमें देखें ये जो होता है ना, ये जो आपका हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन है और जिस तरीके से आपकी जो हेरिटेज है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिया की जो पॉलिसीज में जो शुरू में जो रूल सेट किए उन्होंने मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो ये था कि ये जो आलमी कुव्वतें हैं इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ बट प्ले ऑन योर ओन ग्राउंड्स, कि वो अपनी धरती पे खड़े होके वहां मजबूत होके बाकी जिसके साथ जो ताल्लुक है बनाओ. सोवियत यूनियन के साथ उनका ताल्लुक जो है इट वाज वेरी वेरी क्लोज. Right. और उस जमाने में आम प्रैक्टिसेस ये थी, प्रैक्टिसेस भी ये थी और इम्प्रेशन भी ये था कि सोवियत यूनियन के करीब से जो गुजर गया वो गया. क्योंकि सोवियत यूनियन वाज इन ए काइंड ऑफ एक्सपेंशनिस्ट मूड. Okay. तो ये जितनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलिश, ये सारी जो है, और ये जो आपकी सेंट्रल एशियन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी रियासतें, Right. तो ये आधी दुनिया जो है ना वो रशिया के साथ थी. तो उसमें ये था कि इट डजंट मीन कि रशिया जो है वो कोई इन पे एग्रेशन करता था, लेकिन चूंकि रशिया वाज अ ह्यूज पावर और उनके पास बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी थी, उस साइंस और टेक्नोलॉजी की जिसकी उस वक्त जरूरत थी, जी. और वो साइंस और टेक्नोलॉजी वाज एट पार विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड समटाइम इवन मोर रिफाइंड, Right. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर और ये जो है ना रोड्स एंड इस तरह की जो हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री है जैसे स्टील मिल्स और थिंग्स लाइक दैट, तो उसमें दे वर वेरी गुड. Right. तो उसमें फिर जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर छोटी मोटी रियासतें जो ज्यादा मजबूत नहीं थी फाइनेंशियली या इकोनॉमी के हवाले से, वो खुद ब खुद उन पे डिपेंडेंट हो जाती थी. और दूसरा ये है कि सोवियत स्टाइल ये था कि दे वर वेरी ओपन एंड जेनरस टुवर्ड देयर अलाइड कंट्रीज. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज की वो सपोर्ट करते थे बेहिसाब, जिनसे उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना था, ना मिलने वाला था. बट दैट वाज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस, अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे. तो लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया ने ताल्लुक रखा सोवियत यूनियन के साथ, दैट वाज रियली वेरी क्लोज, लेकिन उन्होंने अपने ग्राउंड्स पे खड़े होके, दे डिडंट लूज देयर ओन ग्राउंड्स. पंडित नेहरू जो है ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट which was the most important movement out of these two blocks. Right. और उसने अपने साथ जो है वो 80-90 मुल्क भी लगा लिया एंड उसने अपने आप को मनवा भी लिया कि वी आर नॉन अलाइंड, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक. बट प्रैक्टिकली दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सोवियत यूनियन फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर मिलिटरी इक्विपमेंट्स, फॉर एवरीथिंग. लेकिन इसको कहते हैं वेयर यू प्ले ऑन योर ओन टर्म्स, that you look at the interest of your country, Right. and at the same time you develop the relationship where you have to. तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म की और बड़ी रैशनल किस्म की अप्रोच थी, जिसकी अभी तक रिफ्लेक्शन जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे नजर आती है. Right. और यही वजह है कि इन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में जो है ना रिप्ले किया विद द यूनाइटेड स्टेट्स. Right. Thank you, Ms. Bashani. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you.